Dima South district is gradually returning back to normalcy. It seems all is still not well in the Hill district. Topodisa is one such village in the district which witnessed massive landslides after the incessant rainfall. In the village, many houses and parked vehicles were damaged as they were toppled down with the debris of heavy landslides. With no assessment being made till date, the actual loss in the village has not yet been ascertained. The damages to dwelling houses caused by landslides has become a serious matter of concern, with as many as 35 houses damaged out of 125 in the entire village. Likewise, in the Johoya Raji village, many houses have been damaged. The recent landslides due to heavy rainfall has damaged at least 15 dwelling houses of Johoya Raji. The woes of the villagers have reached such a level that the villagers are not afraid of staying at their house as it might be crashed any moment due to landslides. Meanwhile, the Assam Rifles is coming to the aid of the villagers for whom it has become next to impossible to make the situation fall back in place. The Assam Rifles is providing recovery assistance for the vehicles that were toppled down in the landslides. जी इटू हम लोग का सब इटू माटी तो गोर टू लैंडस्लाइड हो गया सब चला गया और गोर भी चला गया सब माने दाब गया और उसका बाद में इटू माने हम लोग का गोर का सामने सामने वाला भी 3-4 तो गोर इसे भी दाब के चला गया माने थोड़ा थोड़ा करके इटू जाते ही रहता गोर छोड़ दिया अभी ना गोर छोड़ दिया अभी बैठने नहीं सकता गोर में डर से सुबह में जब हम लोग ये सो रहा था उस टाइम में ज़्यादा बारिश हुआ ऐसे सुना ना आवाज़ भी सुनना माटी सब गिरा ना तो उठ के देखा तो हम लोग का घर का बाहर में भी माटी पूरा लैंडस्लाइड हो गया हमें भी बाद में खबर करा और नीचे तरफ में भी बहुत लैंडस्लाइड हुआ जैसे कि वो क्लब का नीचे उस तरफ में भी हुआ ये आसपास में भी है बहुत सारा है लैंडस्लाइड हुआ ये मोटामोटी एरिया में कितना टू घर खराब हुआ मोटामोटी मेरे ख्याल में 35 ऐसे सुना 16 तारीख सुबह 3 बजे 4 बजे जैसे हुआ फिर 17 तारीख को भी आया 2-3 दिन लगातार आते रहा ये तो हमारा खेल में तो यहाँ तो थोड़ा रिक्स है रहने चाहिए उस दिन में तो 14 डेट में ना हमारा घर एकदम फाक घर में हम खाना पकाया और में एकदम माटी गिरा हमारा फाक घर सब टूट गया बर्तन सतन भी नहीं मिला खबर दूसरा जो So viewers, indeed, it seems as though even though the situation in Dima South district is gradually returning back to normalcy, there are still some villages in the district which are struggling to come back to normal terms after the devastating impact of the rains and the subsequent landslides. So much so that the landslides have left several vehicles and houses damaged, and people in these villages are still struggling to make ends meet and return back to a life of normalcy. And to bring us all the latest updates, I'm being joined now live by my colleague Swadeep Hasamsa from Dima South district. Swadeep, it seems as though the village जहाँ पे मतलब Dima South district काफ़ी अभी धीरे-धीरे normalcy में वापस आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी ऐसे कुछ villages हैं जहाँ पे लोग अभी भी बहुत struggle कर रहे हैं, अभी भी जो impact था landslides का अभी भी उससे भुगत रहे हैं. तो latest जानकारियाँ क्या दे सकते हैं इन लोगों की struggles के बारे में, Swadeep? जी बिल्कुल हमने दिखाया था कि ठोपोटीसा जैसे कि बोल्डोरा जोया राजी ऐसा बहुत सारा गांव है सिर्फ मोहलॉय अगर बात करें माईबांग में भी ऐसा बहुत जगह में ऐसा इम्पैक्ट हुआ है और अभी भी ये लंका जो हाफलोंग रोड है मेन लोगों का एक लाइफलाइन रोड है वो अभी भी रिस्टोर होना बहुत ही बाकी और दूसरा जैसे कि सिलचर हाफलोंग गुवाहाटी रोड फिलहाल लाइट व्हीकल के लिए अभी रिस्टोर कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो छोटा जो गाड़ी है वो हैवी गाड़ी नहीं जाके जो लाइट व्हीकल है वो जा सकते हैं लेकिन अभी भी जैसे कि हम गोंजुंग डिहांगी थाइजुवारी ऐसा इलाका अभी भी रिस्टोर नहीं हो रहा है अभी भी वहां पर अनुमान लगाना मुश्किल है कि वहां का घर कितना डैमेजेस हुआ है वहां पर अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हाजादिसा केप्रे लाइसोंग ऐसा बहुत सारा गांव है जहां बहुत सारा इफेक्ट हुआ है और अभी भी बारिश तो रुक गया है लेकिन बहुत सारा जो है भूस्खलन होने का वजह से घर लोग
घर में लेना मुश्किल हो गया है। और डिमा हासाओ का लोगों का ये कहना है कि इन 50 सालों में कभी इस तरह सा देखा नहीं या हुआ नहीं है। हमने देखा कि इन पहाड़ों में थोड़ा सा बाहर बारिश देता है तो कुछ कुछ लैंडस्लाइड होता है, लेकिन ऐसा जो इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा एक साथ ये कभी सोचा नहीं था। और कल हमने बहुत सारा जगह में और आज भी हमने बहुत सारा घर में गांव में हमने विजिट किया तो देखा कि बहुत सारा घर जो लैंडस्लाइड के कारण भूस्खलन के कारण जो घर टूट गया है उसको अगर फिर से बनाना भी चाहे तो बहुत ही मुश्किल होगा, वहां पे फिर घर बनना भी मुश्किल हो सकता है। और दिमा हासाओ में अभी असेसमेंट करना मुश्किल है कि कहाँ कितना हद तक नुकसान हुआ है और कितना हद तक ये नुकसान होने का वजह से लोगों का जिंदगी में कितना असर हुआ है ये भी बताना मुश्किल है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी भी लोग बारिश जो रुक गया है लेकिन लोगों का दिल से अभी भी डर नहीं गया है, क्योंकि हम पहाड़ों में अभी भी बारिश रुकने के बाद में भी वो जो जमीन जो है खिसकते अभी भी घर जो है अभी भी बहुत सारा रिस्क की जोन में अभी भी है। जी, तो स्वदीप, देखा जाए तो सिचुएशन अभी भी काफी गंभीर होकर रखा है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि असम राइफल्स के पर्सनल अभी आके इन विलेजर्स को रिकवरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में और क्या बता सकते हैं स्वदीप? जी, जैसे कि देखा कि इन दिनों 14 तारीख को जब ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था तो गाड़ी एक पार्क करके रखा था, तो वहां पर लैंडस्लाइड क्लियर ना होने की वजह से असम राइफल या जो रेस्क्यू टीम है, जो व्हीकल जो पहाड़ के नीचे से चला गया था उसको रेस्क्यू करने नहीं पा रहा था। लेकिन असम राइफल की मदद से ये जो 2 गाड़ी है और उनको सेफली रिकवर किया है। लेकिन वाहन अभी भी वाहन जो गाड़ी जो है वो फुली डैमेज हो गया है। और अभी भी ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी अनट्रेसेबल बहुत सारा ऐसा लोकेशंस है जहाँ अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन आ नहीं पा रहा है। और अभी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट सेवा अभी भी फुल्ली रिस्टोर नहीं हो पाया है। अभी हम बात करें जियो का, तो जियो अभी भी 20-20 में कटते जा रहा है। और एयरटेल का कभी कुछ रिस्टोर हुआ है, जिस चीज का माइक्रो एफ है वो रिस्टोर हुआ है, लेकिन अभी भी जो ऑप्टिकल फाइबर है अभी भी फुल्ली रिस्टोर नहीं हुआ है। उसकी वजह से जो कॉन्टेक्स्ट जो है अभी भी लोगों का, जहां हारंग गजाओ, लाइसोंग, खेपरे एरिया में किस तरह सा है, गोंजुंग एरिया में किस तरह से हालात है, थायो एरिया में कैसा हालात है, वो अभी भी बताना मुश्किल है। और बहुत लोगों का अभी रिलीफ कैंप में भी रखा गया है। रिलीफ कैंप में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मॉनिटरिंग तो जरूर कर रहा है, लेकिन अभी उन लोगों का फिर से उन लोगों को कैसे सेटल करे वो भी एक बहुत सामने में चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि असम राइफल्स के पर्सनल को काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, तो कैसी टाइप की मुश्किलें इनको सामना करना पड़ रहा है? काफी मतलब मुश्किल होगा उन जगहों में पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते भी, सड़कें भी काफी खराब हालत में है। तो कैसी तरह की मतलब प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि भाई बहुत सारा जगह में जो लैंडस्लाइड हुआ है, सिंकिंग हुआ है, जिस रास्ता ना होने का वजह से और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उन लोगों का जो है कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ज्यादा सामने चैलेंजिंग आ रहा है। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि लंका हाफलोंग रोड अभी भी बहुत सारा लोकेशंस में अभी जो जमीन सिंकिंग हो गया था, भूस्खलन हो गया था, उसकी वजह से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी भी बहुत सारा गाँव में नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से ज्यादा चैलेंजिंग है। उसको अगर कोई गांव में फंसा हुआ है या फिर कोई गांव में फंस गया है तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी एक कनेक्टिविटी चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, तो उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा चैलेंजिंग है। और जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारा एयरफोर्स की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारा जगह में, जैसे कभी डिमा हासाओ में ऐसा हुआ नहीं है जहां लाइसोंग एरिया, खेपरे एरिया, हाजाडिसा एरिया में एयर ड्रॉप के द्वारा लोगों को रिलीफ देना पड़ा। इस तरह से हालात है, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो रास्ता अभी तक भी फुली रिस्टोर नहीं हुआ है, फुली क्लियर नहीं होने की वजह से इस तरह से अभी बहुत ज्यादा रास्ता जो है क्लियर नहीं होने की वजह से ज्यादा चैलेंजिंग देखने मिल रहा है। जी बिल्कुल स्वदीप, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड ब्रिंगिंग अस ऑल ऑफ दोज लेटेस्ट अपडेट्स।